Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. After the French Revolution, the new ideas of liberty, equality, and freedoms spread in all over world. By the inspiration of French Revolution, the individual rights and societal changes, these ideas started to be discussed in many part of Europe and Asia. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक इक्वलिटी का, लोगों के राइट्स का, लिबर्टी की, इन सारी बातों पे लोग डिस्कस करने लगे और अपनी अपनी कंट्रीज़ में वो एक तरह से डिमांड करने लगे इक्वलिटी और फ्रीडम और राइट्स की. दैट वाज द पीरियड व्हेन न्यू कॉलोनीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द पावरफुल कंट्रीज. द पावरफुल कंट्रीज दे एस्टेब्लिश द कंट्रोल ऑन द स्मॉल एंड वीक कंट्रीज and make them their colonies. Like we can say the example of our country, India. India was the colony of powerful country England. So in this way, many other countries were the colonies of the powerful countries of that period. In these countries, the ideas of societal change were discussed and affected the minds of people. In Europe, these ideas were came into the form of three group. यूरोप में जो ऐसे आइडियाज़ थे, जो न्यू चेंजेस चाहते थे, इन लोगों का तीन ग्रुप जो है सामने आया. दीज ग्रुप्स आर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज ग्रुप्स एंड देयर व्यूज. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द लिबरल्स एंड देयर व्यूज. Liberals were the group. They wanted the change in the society and they are tolerant to religions. Means according to them, all the peoples, all the religious people have the right to live in the country. Second important factor, they oppose the uncontrolled powers of dynastic rulers. You know very well that in that period maximum countries of the world have the monarch system. The dynastic ruler system were running. So the liberals, they opposed this dynastic succession. Third thing, safeguard the rights of individuals. Means every citizens should have the rights and their rights should be protected by the government. Then they wanted a representative elected पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. इसके साथ साथ ये चाहते थे, लिबरल ग्रुप चाहता था कि जो गवर्नमेंट हो वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट की जाए, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएं और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंक्लूड हो. एंड दे वांटेड द इंडिपेंडेंट एंड फ्री जुडिशरी. मीन्स जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलर. इंडिपेंडेंट जुडिशरी दे वांटेड. बट with all these features, we cannot say that liberals are the Democrat. Why? When we talk about the democracy provides the voting rights to all the citizens. But the liberals, they don't want to provide the voting right to all the citizens. They were not full Democrats. They believed in the voting rights to propertied men only. The men who have the property, who paid the taxes, only these people should have the right to वोट अकॉर्डिंग टू द लिबरल्स. लिबरल्स के हिसाब से केवल वो लोग जो टैक्स पेमेंट करते हैं, केवल उन्हें ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए. दे आल्सो अपोज द वोटिंग राइट्स टू वुमेन. वो वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स देना नहीं चाहते थे. दैट इज द रीजन वी से दैट लिबरल्स वी आर नॉट फुल डेमोक्रेट्स. अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की. रेडिकल्स पीपल्स, they wanted the government based on majority of country's population. Means according to radical peoples, जो गवर्नमेंट होनी चाहिए कंट्री में, वो उस कंट्री की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी के आधार पे होना चाहिए. मतलब जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उन्हीं को गवर्नमेंट आने का राइट्स मिलना चाहिए. सेकेंड थिंग, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स. इसके अलावा ये जो रेडिकल ग्रुप था, इन्होंने जो प्रिविलेज सिस्टम रन कर रहा था यूरोप में, इस साथ साथ जो रिच और पावरफुल फैक्ट्री ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, इनका ये क्या करते थे, अपोज करते थे. इनके हिसाब से, रेडिकल्स के हिसाब से इन लोगों को कोई भी प्रिविलेज मिलना नहीं चाहिए. ऑल द सिटीजन शुड बी
equal. Dislike the concentration of wealth in few hands. मीन्स ये नहीं चाहते थे कि जो वेल्थ है, जो मनी है, वो सारा का सारा कुछ ही लोगों के हाथ में रहे. दे वांटेड ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सपोर्टेड द वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स. रेडिकल्स जो ग्रुप था वो वुमेन्स के वोटिंग राइट्स के जो मूवमेंट्स होते थे उनको सपोर्ट करता था. मीन्स ये वुमेन्स को भी वोटिंग राइट प्रोवाइड करना चाहते थे. अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव आर द पीपल इन स्टार्टिंग दे डिड नॉट वांट एनी चेंज. दे टोटली अपोज द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स. ये वो ग्रुप था जो स्टार्टिंग में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं चाहता था. दे बिलीव्ड इन ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम. दे बिलीव्ड इन चर्च, मोनार्क सिस्टम एंड आल्सो द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस. इनके हिसाब से जो सिस्टम पहले से रन कर रहा है उसी सिस्टम से कंट्री को रन करना चाहिए. उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं चाहते थे. चर्च सुप्रीम पावर था, नोबल मेंस सुप्रीम पावर थे, गवर्नमेंट सुप्रीम थी, तो ये चाहते थे सब कुछ वैसे ही चलता रहे. सो इन स्टार्टिंग दे टोटली अपोज्ड द आइडिया ऑफ चेंज, बट आफ्टर सम टाइम दे फाउंड एंड दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस आर नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द टाइम. बाद में इनको एहसास हुआ कि कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करनी चाहिए. एंड दे बिलीव्ड इन प्रिजर्विंग एंड रिस्पेक्टिंग पास्ट. इनका मानना था कि अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तब भी हमें हमारा जो पास्ट है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको हमें प्रिजर्व रखना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. दे वांटेड द चेंज बट एट ए स्लो पेस. मीन्स द कंजर्वेटिव पीपल्स later they accepted some change, but the change should not be very fast. It should be systematic and a slow process. Means changes हो but slow process से हो, जिससे हम अपने हिस्ट्री से, अपने पास्ट से कनेक्टेड रहें, या आप कह सकते हैं अदर वर्ड्स में रूट से हम अपने कनेक्टेड रहें, जो हमारे इतिहास है जो उससे हम कनेक्टेड रहें. Here we can compare the liberals and conservatives. Liberal people want to keep clear and strict separation of church and state. Means जो चर्च की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की पावर है, उसमें क्लियर सेपरेशन चाहते थे. जबकि कंजर्वेटिव पीपल वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट मोर रिलीजन इनटू द गवर्नमेंट पॉलिसी. मीन्स कंजर्वेटिव चाहते थे कि रिलीजन्स का रोल गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज में ज़्यादा हो. According to the liberals, no religion in government policy, and here views largely based on the religion. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो तीनों ग्रुप थे, liberals, radicals and conservatives, all these peoples are against the concentration of wealth in few hands. They oppose the privilege system. Radicals wanted to voting rights for women also. Conservatives, they did not want to provide the rights to the citizens, but later they accepted some change. So these are the three views, and in these three views, the peoples of the countries, citizens of the countries, we are divided in their views in three groups. कुछ लोगों को कंजर्वेटिव सही लगते थे, तो कुछ लोगों को लिबरल्स और रेडिकल्स सही लगे. तो इस तरह से एक लोगों की थिंकिंग जो थी वो ग्रुप में डिवाइड होती जा रही थी. This is assignment based on today's video. First, mention the type of government favored by the liberals. Liberals कैसी गवर्नमेंट चाहते थे. Second, how can you say that liberals were not democrats? आप कैसे कह सकते हैं कि liberals डेमोक्रेट नहीं थे. Describe the views of radicals and what were the viewpoints of conservatives. Name any two Indians who talked of significance of the French Revolution. In India, the many social reforms were also affected. Among them, two most famous persons, Raja Ram Mohan Rai, Tipu Sultan, all these peoples were affected by the French Revolutions. So आज के लिए इतना ही. In the next video, we will discuss that how the socialism spread in the Russia. Thank you. Have a nice day.